Hello everyone, welcome back to my channel Kinker Biophilic, and today we are going to see the part 2 of Mendel's law of inheritance. इसका part 1 already upload हो चुका है and it is for important for class 12 and class 10. 9 11 9 और 11 वाले भी पढ़ सकते हैं for their next year preparation. So let's see what is Mendel's law of inheritance. लॉ ऑफ जो पिछले पार्ट में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो इस पार्ट में वी आर गोइंग टू cover up the law of segregation as well as law of independent assortment. Law of segregation: the two alleles of a gene separate during gamete formation and each gamete carries only one allele. The two alleles of a gene, जैसे ये जीन है तो जीन को मान लेते हैं यहाँ पे कैपिटल टी एक जीन है, ये हो गया स्मॉल टी। इसका द टू अलील्स, दीज आर द अलील्स, एक दो अलील सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, एक दो, तो ये क्या हो गया गैमेट। एंड ईच गैमेट कैरीज ओनली वन अलील, एक अलील है, ये भी एक अलील है। ये आगे जाके क्रॉस करेंगे एंड देन अगेन ये सेल्फिंग करेंगे और फिर वी विल बी सीइंग दी F2 जनरेशन, ठीक है। ये आगे देखेंगे। proposed by Gregor Mendel, also called the purity of law of purity of gametes, ये आपको याद रखना है, also called the law of purity of gametes. Alleles remain distinct and do not blend, आपस में मिक्स नहीं होते. During fertilization, alleles unite again to form a pair in the offspring. Obviously, अगर fertilization होता है तो 123 characters, say for example in human being we have 46 chromosome, तो जब fertilization होगा तो 23 characters will coming from the parent 1 and the 23 characters is coming from the parent 2. Okay, so over here जब यहाँ पे P plant पे बात हो रही है तो half of the character will be coming from parent 1 and half of the character from parent 2, and during the fertilization these alleles will reunite again to form a pair. Explains the reappearance of recessive traits in the F2 generation. Over here we will be also seeing the recessive traits. Let's see, we'll see with this beautiful slide. यहाँ पे see first one, parents red white, when crossed F1 all red. This we have already seen in law of dominance. Okay, now the law of segregation comes when F1 is selfed. F1 into F1 means F1 generation is being selfed. Selfing is done. So what it comes when we are selfing it? See, capital R. This is F1 generation. Yeah. Capital R, capital R, capital R, small r, capital R, small r, स्मॉल आर। तो क्या ये एकदम बिल्कुल सेम है? रेड यहाँ पे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो गया, ये हो गया हेट्रोजाइगस रेसेसिव, और ये हो गया सो सॉरी होमोजाइगस। हाँ, और यहाँ पे हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट। तो क्या दोनों तरह के रेसेसिव और डोमिनेंट दोनों पे बात हुई है? यहाँ पे रेसेसिव कैरेक्टर को छोड़ा नहीं गया है, इसको भी शो किया गया है। तो यही है सेग्रीगेशन, एक डोमिनेंट कैरेक्टर भी है, दो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी है और एक रेसेसिव होमोजाइगस है। इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? 3:1। 3 रेड कलर के दिख रहे हैं, बाहर से रेड कलर के दिख रहे हैं, और एक वाइट है। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या है? 1:2:1। 1:2:1 का मतलब एक यहाँ पे डोमिनेंट, यहाँ पे हेट्रोजाइगस 2 और एक
रेसेसिव मतलब जीन में चेंजेस। आई होप इतना सीरीज देखने के बाद आपको ये क्लियर होगा कि जीनोटाइप मतलब कि जीन में चेंज हो गया है उसका। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट इसके नाम में ही है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ इन सेंस कि एक अलील यहाँ पे एक अपना अलग अलग फिनोटाइप शो करेगा। अगर एक भी एलील चेंज हो गया किसी भी जीन में तो वो उसका फिनोटाइप को चेंज कर देगा। ठीक है, तो alleles of different genes assort independently during gamete formation are inherited separately. Proposed by Gregor Mendel applies to genes located on different chromosomes far apart from the same chromosome. These are the some points you can have as your notes. Different pairs of alleles segregate independently during gamete formation, leads to the formation of new combination of trait in offspring and explains genetic variation among offspring. ठीक है, इसको एग्जांपल के साथ देखेंगे और इसका एग्जांपल है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में इसका डिटेल वीडियो वी हैव ऑलरेडी सीन इन मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे एक ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको राउंड येलो, ये हो गया रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, तो राउंड येलो में क्या दिख रहा है, कैपिटल वाई और कैपिटल आर। यहाँ पे रिंकल्ड ग्रीन के लिए स्मॉल वाई स्मॉल आर। जब इन दोनों का ये हो गया डोमिनेंट, पक्का ये डोमिनेंट हो गया, ये क्या हुआ रेसेसिव। जब डोमिनेंट और रेसेसिव का यहाँ पे क्रॉस हुआ पेरेंट जनरेशन में तो यहाँ पे क्या आया, सारे के सारे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। यहाँ पे फिनोटाइप क्या है इसका, राउंड येलो। ठीक है, ये अब इसको ही सेल्फिंग कराएंगे। ठीक है, F1 इंटू F1 सेल्फिंग कराए। यहाँ पे F1 जनरेशन में फिनोटाइप क्या आया, राउंड येलो। अब यहाँ पे सेल्फिंग कराए तो इधर हो गया मान लीजिए फीमेल और इधर हो गया मेल, सॉरी इधर हो गया मेल। ठीक है, तो ये वाला फीमेल का सारा गैमेट है, ये वाला मेल का गैमेट है। हालांकि यहाँ पे दोनों सेम ही है तो सेम ही लिख देंगे। अब यहाँ से इस तरह से क्रॉस होता है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, क्या आया राउंड येलो। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड को देखना है, किसको देखना है, फर्स्ट और थर्ड को। क्या आया, राउंड येलो। अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर, फर्स्ट और थर्ड को देखा। अगर डोमिनेंट है तो मतलब वो राउंड येलो होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे, तो हो गया वो राउंड येलो। नाउ कमिंग हियर, कैपिटल वाई कैपिटल आर अगेन से सेम, इसमें डिफरेंस दिखेगा स्मॉल वाई कैपिटल आर। तो फर्स्ट में क्या दिख रहा है, रेसेसिव, थर्ड में क्या दिख रहा है, डोमिनेंट। तो रेसेसिव वाला कैरेक्टर क्या है, फर्स्ट में दिख रहा है तो फर्स्ट में आ जाएगा ग्रीन। ठीक है, वाइट वाला जो है वो कलर के लिए है और रेड वाला क्या है, शेप के लिए है। ठीक है, तो ये हो गया ग्रीन, लेकिन राउंड आर जो लिखा हुआ है वो डोमिनेंट है, इसका मतलब वो राउंड कलर का होगा लेकिन ग्रीन होगा। तो लाइकवाइज वी आर सीइंग द सेम। अब यहाँ पे एक रिंकल्ड वाला देख लेते हैं। ये हो गया कैपिटल वाई स्मॉल आर। कैपिटल वाई मतलब कि ये हो गया येलो, स्मॉल आर है मतलब कि राउंड नहीं होके क्या हो जाएगा, रिंकल्ड। ठीक है, और उसी तरह अगर स्मॉल वाई स्मॉल आर का देखेंगे तो रिंकल्ड है और ग्रीन भी रहेगा। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, स्मॉल वाई है, लास्ट पोजीशन थर्ड पोजीशन पे क्या है,
आर है, स्मॉल आर है, तो मतलब wrinkled green. So the phenotypic ratio will be 9:3:3:1. तो यहाँ पे एक एक अलील में चेंज हो गया. मान लीजिए यहाँ पे एक एक अलील, अगर कोई भी अलील में चेंजेस आ रहे हैं तो वो अपना एक अलग फिनोटाइप दिखा रहा है, अपना एक अलग ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर दिखा रहा है. ठीक है, तो दिस वाज इट फॉर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, अब इसमें मिनरल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, दैट विल बी कवरिंग ऑन द नेक्स्ट वीडियो. और उसके एक्सेप्शंस में जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, multiple alleles, all this we'll be seeing in the next video. Okay, that's it for today. So thank you everyone. If you like this video, do like, share and subscribe Thinker Biophilic, and hope you are enjoying this series, and we'll be moving forward with the next video. Thank you so much.